my class. We are doing the CBSE sample paper 2021-22, term 1 paper for 40 marks. Now let me just, we finished with 6 questions. The last question was Mrs. Sakshi, an economics teacher, was explaining the concept. Now look at this. The concept of minimum percentage of the total deposits to be kept by any commercial bank with the central bank of the country as per norms and statutes prevailing in the country. 4 options were given: cash reserve ratio, repo rate, bank rate, statutory liquidity ratio, and we had pointed out to cash reserve ratio. Now let's come to the next question. And before that, let me just tell you something about what types of questions will we get. What type of questions are there? Now look at this. I've just put them down as the MCQs, that is multiple choice questions with 4 options generally. Then we have the fill up the blanks. Then we have also third statements, like 2 statements would be given. Are they true, false, or related to each other, or something like that. And another important statement is that of not statements. They'll be given, you will be getting a statement in which not something, it is not done, or it's out of the following options which is not, say, balance of payment on the current account, for example. Something like that you'll get. So you have to be very careful when you read the questions. Then you have what is known as case study. Now what are case studies? Case studies, just in order, it's not comprehension, just remember, it is not comprehension. What is important is that will give you an insight into what questions are coming your way. So you be careful, and what I do is I generally look at the questions first and then go to the case study. Perhaps that rings a bell. So these are case study. Then you have what is known as a match the columns. Match the columns, and 4 options will be given there too. So whichever, or sometimes it'll say take the odd one out, or which is the correct one. And then you have, which is very important, is assertion reason, which has been going on for quite some time. They prepare you for all these exams that you give for the entrance exams for say common admission test or the GMATs, or for something like that. So they are preparing you for most of the exams that you have all of this. You also have what is known as pictorial questions. Pictorial questions are picture questions. Now picture questions are generally graph, tabular, pie charts, etc. And then you have those numerical statements. You have to statements in which numbers are given, and based on that you have to give the answers. Choose again, all our choice. तो एक बार और बता दूं कि जो क्वेश्चंस आपके जो 60 क्वेश्चंस दिए होंगे ना, वो किस तरह के होंगे? वो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे कि आपको ऑप्शंस दिए होंगे 4, जिनमें से आपको चूज़ करना. और एक चीज़ याद रखना, आपको OMR शीट मिलेगी जिसमें आपको अपने बॉल पॉइंट पेन से, दैट इज़ ब्लू या ब्लैक से, आपने लिखा होगा. यू हैव टू फॉलो दैट. उसमें हम कुछ नहीं बता सकते हैं. सो दे विल टेल यू. शुरू में तो कभी कभी हमें याद है पेंसिल से करना होता था, अब पेन से होता है. सो पेन की इंक वो जो है कंप्यूटर रिकग्नाइज करता है, एंड देन दैट्स हाउ यू गेट. एंड जब आप OMR शीट भर रहे होते हो, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि फिर से उसको वाइट लिक्विड लगाने से समथिंग आपका सही आंसर नहीं जाता. तो एक बार और टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरह के, ये याद कर लो कि ऑप्शंस वाले होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. एक तो ये होंगे, जनरली सब में मल्टीपल चॉइस ही होगा. और अगर फिलअप द ब्लैंक्स भी है ना, उसमें आपको चॉइसेस मिली होंगी
चार चॉइसेस दी होंगी, मल्टीपल, देयर आर ऑप्शंस. आपका सारा जो क्वेश्चन पेपर है ना, इट्स बेस्ड ऑन ऑप्शंस. आपको कुछ ऑप्शन, कभी कभी तो ऐसा होता है कि आंसर आता है लेकिन ऑप्शंस देख के आदमी कंफ्यूज हो जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल समटाइम्स यू जस्ट सी द क्वेश्चन विदाउट, आप आंसर भी मत देखो और आपके दिमाग में आप वर्कआउट करते हो, क्योंकि पढ़ाई तो हमने की है, हमने इन डेप्थ पढ़ाई की है हर एक चैप्टर की. तो इसलिए आपको पहले आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर वैसे ही आना चाहिए विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस. जनरली हम वैसे ही करते हैं, लेकिन यही है कभी कभी आप नॉट नहीं देखते हो कि नॉट इन दिस, तो NOT जो होता है नहीं है को आपने ध्यान से पढ़ना है. और जैसे कि एक बार और मैं फिर बता दूं कि ये जो आपका ये जो टर्म 1 पेपर है उसमें क्या आएगा. उसमें है कि आपका पार्ट 1 में इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स से आ जाएगा मनी एंड बैंकिंग, फिर गवर्नमेंट बजट, ठीक है, और एंड द इकोनॉमी, और फिर आ जाएगा आपका जिसको हम कहते हैं ओपन मैक्रो इकोनॉमिक्स. ना ओपन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? ये होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इसमें आप पढ़ते हो. तो ये आपके पार्ट ए मैक्रो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स से. और जो पार्ट भी है ना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें आपके जो चैप्टर्स हैं वो 6 चैप्टर्स हैं. कौन कौन से हैं जी? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है. तो एक्चुअली देखा जाए तो उसको जब आप बुक्स में पढ़ते हो तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ये पूरा आपका यूनिट 6 में जो है ना वो वाला है. तो आपने देखना है कि जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 का, तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एक ये हो गया आपका. फिफ्थ में आ जाएगा आपका इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, ये टॉपिक आ जाएगा, ये आप पढ़ लो. फिर 6th टॉपिक हो जाएगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. इसका अप्रेजल है, दैट मीन्स अगर इसमें आपको फिर डीमोनेटाइजेशन और गुड्स एंड सर्विसेज GST वगैरह भी आप इसमें आ जाएंगे, ठीक है. ग्लोबलाइजेशन में ओके. सो देन वी कम टू 7th है पॉवर्टी से रिलेटेड सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है. आप अगर इनकी NCERT की किताब भी देखो तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, इंटरेस्टिंग वे में बताया हुआ है. यू मस्ट रीड दिस, आपको ही देखना चाहिए. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये भी NCERT से है, यू गॉट टू गो थ्रू इट. एक्चुअली कहानी जैसे आप पढ़ सकते हो. तो पॉवर्टी है, उसमें फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक और टॉपिक है इन इंडिया, एंड रूरल डेवलपमेंट. तो आपको इन सारे जो हैं ये जो हैं आपको सारे ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं. तो टोटल मिला के आपके कितने हो गए जी? 9 टॉपिक्स हो गए. 3 हो गए फ्रॉम इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स से और 6 हो गए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से, ठीक है. सो देन वी कम टू, आगे बढ़ते हैं. अच्छा सॉरी, फिर बता दूं मैं कि फिल अप द ब्लैंक्स में भी ऑप्शंस दिए होंगे आपको. फिर स्टेटमेंट्स होंगे, स्टेटमेंट्स में बताया होगा कि भाई ये वाला स्टेटमेंट है, सही है गलत है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. ऑल्टरनेटिव ऐसे दिया होगा, स्टेटमेंट 1 में कुछ बताया होगा, स्टेटमेंट 2 में कुछ बताया होगा, फिर बताएंगे जी ऑल्टरनेटिव 4, इसमें भी ऑल्टरनेटिव दिए होंगे. So just remember, it's nothing but multiple choice questions. हर एक के साथ ऑप्शंस हैं. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में होगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, या फिर बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, या स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स. इस तरह के ऑप्शंस हैं. और इसमें एक और भी जो है स्टेटमेंट्स जो आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी हम बौखलाए होते हैं और ऐसे ही पढ़ लेते हैं और नॉट को देखते हैं. और ये नॉट स्टेटमेंट ज़रूर बढ़िया से देखना है कि व्हाट इज़ नॉट इन इट. जैसे कि याद है कि हम लोग ने यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था आपका, लाइक लेट मी शो यू एक बार जस्ट टू मेक एग्जाम्पल दिखाने के लिए. आपने क्वेश्चन नंबर आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट an example of invisible item under current account of the
बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रांजैक्शन। सो तीनों जो हैं ये हैं सर्विसेज। एक जो नॉट है, नॉट इनविजिबल आइटम एक ही है, दैट इज मर्चेंडाइज लिंक्ड ट्रांजैक्टिंग। मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स, ठीक है। सो इस तरह से तो ये हो गया आपका, जैसे बताया मैंने, नॉट स्टेटमेंट्स आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। फिर आपका आ जाएगा केस स्टडी, कोई भी केस स्टडी दी होगी और फिर उसके बेसिस पे अगेन क्वेश्चंस दिए होंगे, 4-5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चंस जो भी दिए होंगे उसको आपने उसमें ऑप्शंस दिए होंगे जी। तो इस तरह से अब देखो एग्जाम्पल के लिए अगर इन्होंने दिखाया है कि क्वेश्चन नंबर 55 to 60 आर टू बी आंसर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा, और डेटा में इन्होंने इतनी बड़ी केस दिया हुआ है, ठीक है, इंडिया के बारे में बताया, ये बाद में करेंगे। आई एम जस्ट शोइंग यू, ये आपने पढ़ा, ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा एक बार। फिर आप क्या करते हो, उसके बाद क्वेश्चंस देखोगे। जैसे क्वेश्चन 55 में अकॉर्डिंग टू द गिवन टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट में डैश वॉज adopted as the guiding principle of the government and all governments since 1991, modernization, liberalization, privatization, globalization। तो आपने इसमें से या तो यहाँ पे पढ़ के आपने यहाँ से मिलता है, बट जनरली यू शुड नो व्हाट इट इज़, ठीक है। तो वी विल बी डूइंग दिस लेटर। तो ये एक एग्जाम्पल था से फॉर की स्टडी। फिर आ जाएगा जी आपका मैच द कॉलम्स, मैच द कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, और उसमें भी ऑप्शंस होंगे। जो ऑप्शन आपको सही लगेगा आपने उसको मार्क करना है। फिर पिक्टोग्राफ में आपको कुछ भी दिया होगा जो पिक्चर्स में होगा, ठीक है, तो उसको हम पिक्टोग्राफिकल क्वेश्चन कह सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड आउट व्हाट द आंसर है, उसके बेसिस पे आपको आंसर करना होगा। और ऑफ कोर्स यू हैव व्हाट इज नोन एज न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगेन आर स्टेटमेंट्स, आपको समझना है, लैंग्वेज में लिखा होता है, नंबर्स लिखे होते हैं, आपको उसको समझना होता है। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। 6 तो हम कर चुके हैं, 7 से 4-5 क्वेश्चंस करते हैं इसमें, इस क्लास में। तो इसमें बताया गया है जी कि टू फ्रेंड्स मीरा एंड सिंधु वर डिस्कसिंग द एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। अक्सर आप देखते हो कि जो पीयर ग्रुप्स होता है ना, आपस में ही काफ़ी बातें कर रहे होते हैं पढ़ाई के बारे में। सो एक ने कहा कि देखो होता है ना, बताओ तो जाने। उसने डेफिनेशन दी और उसको पूछा कि क्या है, बोले कि देखो ये कौन सा सिस्टम है, बता सकते हो। अंडर दिस सिस्टम द एक्सचेंज रेट्स आर डिटर्मिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। However, deliberate efforts are made by the competent authority to keep the exchange rates within a specific range. The above mentioned statement was given by Sindhu. Identify the type of exchange rate system she was talking about. अपनी फ्रेंड को कौन सा पूछ रही थी, मीरा से क्या पूछ रही थी, कि उसने डेफिनेशन दिया। एनी बट इवन इफ एज यू रीडिंग यू गेट द डेफिनेशन कि भाई डिमांड एंड सप्लाई से भी है और ऊपर से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी है, तो हैज़ टू बी मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। सो मैनेज में दोनों के बेनिफिट्स होते हैं। इट्स अ हाइब्रिड बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर 8th क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1 कहता है जी पब्लिक गुड्स। आपके दिमाग में आना चाहिए पब्लिक गुड्स आर गुड्स फॉर एवरीवन, ठीक है। एक पार्क है, इट्स फॉर एवरीवन। डिफेंस है, इट्स फॉर एवरीवन। जैसे ही आपके दिमाग में पब्लिक गुड्स समझ में आता है ना, आगे पढ़ो। आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक। स्टेटमेंट 2 में लिखा है पब्लिक गुड्स आर excludable and rivalrous in nature.
अगर आपने ये वर्ड्स कभी देखे भी नहीं होंगे तो आपको लगेगा एक्सक्लूड, सोच लेना ये क्या है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मतलब कि आप इसको हटा सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ ना फॉर एवरीवन, तो एक्सक्लूड कर सकते हैं कि भाई किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, नहीं ऐसा। और राइवल रेस का मतलब कॉम्पिटिटिव नहीं है ना ये। तो चलो देखते हैं, स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है, पब्लिक, अच्छा सॉरी, लेट्स जस्ट टेक दी ऑप्शंस। ऑप्शंस यही होंगे कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है, both of them are false, statement 1 is true and whereas 2 is false, statement 2 is true and statement 1 is false। तो इसके बेसिस पे आपको लगेगा क्या है कि जो स्टेटमेंट 1 है कि पब्लिक गुड्स जो होती हैं वो गुड्स हैं जो कि कलेक्टिवली सब कंज्यूम करते हैं इकट्ठे बाय द पब्लिक, इसलिए पब्लिक गुड्स कहते हैं, तो सही है। लेकिन आप स्टेटमेंट 2 देखो ना, पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड आर राइवलरस इन नेचर। एक्सक्लूड होता है नहीं ना, कोई जैसे कि बोलेंगे नहीं भाई यही यही आ सकते हैं, तो वो पब्लिक गुड होएगा ही नहीं, एक्सक्लूड ही कर सकते हो आप, एवरीबडी हैज़ टू गेट इट। एंड राइवलरस मतलब राइवलरी है किसी पे नहीं, देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन एज सच। सो तो ये स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट ट्रू, सो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, तो सी ऑप्शन में आ गया आपका, ठीक है। अब देखना जी, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। ये क्या है, ये देखो फिल अप द ब्लैंक्स है, तो लेट्स रीड। अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ नेशन, the two main categories of accounts for the classification of the transactions are dash and dash। आपको तो पता चले, विदाउट रीडिंग यू शुड नो करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, इन येट देन यू सी ऑल्सो, देन फटाफट देखो क्या क्या लिखा हुआ है। करंट अकाउंट, यूनिलैटरल ट्रांसफर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, सो यू नो कि करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। सो अच्छा, फिर अब ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं कि करेक्ट ऑल्टरनेटिव में से चूज़ करना है। कहाँ करंट अकाउंट पहले लिखोगे, वॉट एवर, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सो क्या लिखा हुआ है इन्होंने। सो लेट्स जस्ट सी व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। सो जस्ट लुक एट दैट, yes, B is the correct answer, 1 and 3। अब let's take the 10th question। Identify which of the following is not a function of the Reserve Bank of India। अब याद रखो ये जी है not a function। It acts as a banker to the government, yes it does। it acts as a custodian of the gold reserves of India, yes। to act as the financial advisor to the government, yes ये भी सही है। to issue coins and 1 rupee note, भाई ये तो इनका काम ही नहीं है ना भाई। सो दैट्स इट, सो यू जस्ट मार्क इट आउट देयर। तो हमें ये पता है कि जी भाई 1 रुपी नोट जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करता है या सर्कुलेशन में, ऑफ कोर्स बाकी सारे बैंक नोट्स आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक को है लीगल राइट टू इशू करेंसी नोट्स, और world over all the central banks, by the way Reserve Bank of India is the central bank of India, and मैं एक बार और ज़रा करेक्ट कर दूँ इस पे ही कि किसी ने पूछा था कि now look at this, जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, identify which of the following banks does not interact directly with the general public, and we know it's the Reserve Bank of India, right? लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है Central Bank of India यहाँ पे, so that should, just to confuse you, all these Bank of India, State Bank of India and Central Bank of India जो हैं ये commercial banks हैं of India, so you should keep that in mind। This was question number 3। So let's take the 11th question। Industrial Policy Resolution IPR 1956 formed
जो है IPR Industrial Policy Resolution 1956 form the basis of the dash 5-year plan. कौन सा 5-year plan आपको बताना है. इन्होंने ऑप्शंस दिए, फर्स्ट 5 ईयर, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, वटेवर. अब आपको ये पता है कि प्लानिंग इन इंडिया कब शुरू हुई थी? 1951 टू 1956. ठीक है. तो उसके फर्स्ट वाज एन एब्सोल्यूट एग्रीकल्चरल प्लान, एग्रीकल्चर के लिए था, और उसी में दे स्टार्टेड डिसाइडिंग कि जिस कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है वही आगे ग्रो करता है एंड ऑल ऑफ दैट. तो उन्होंने फिर दे मेड दिस पॉलिसी रेजोल्यूशन ड्रॉप किया था, और 1956 का जो पॉलिसी फॉर्म हुआ था दैट वाज किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द सेकेंड 5-year प्लान, जो उन्होंने सेकेंड 5-year प्लान करा था उसी के टाइम पे. सो ऑप्शन क्या हो गया आपका? सी ऑप्शन. देन यू हैव व्हाट इज नोन एज 12th क्वेश्चन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. जैसे आपके पास दिमाग में आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, और ऑक्यूपेशन ब्रॉडली हमने किन सेक्टर्स में डिवाइड किया है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. जैसे ही आपने ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर पढ़ा आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए. सो आगे पढ़ो. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डैश. यू हैव टू फिल अप द ब्लैंक. देखा कितने फिल अप द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं, और इसमें उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं. ए, साइज ऑफ द लेबर फोर्स इन अ कंट्री. ठीक है. फिर आ गया जी आपका बी, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री. सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकॉनमी. सेक्टर्स दिख रहा है ना, डिफरेंट सेक्टर्स. लगता है यही सही लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स, जो वर्कर्स हैं अमंग द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी. बस यही तो है. और नेक्स्ट ऐसे ही लिखा हुआ है, नेचर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट वर्क, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स, इसी को रेफर करता है. ठीक है. सो इट रेफर्स टू व्हाट? इट रेफर्स टू सी. आप OMR शीट में लिख दोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अमंग different sectors of an economy. So the next we will do in the next class.